Welcome to a new episode of IB Today podcast, Let's Talk. This is your host, Mohammad Afan, and today we are doing a special episode as teaching as a career. So, we brought an expert, we have a special guest that requires no introduction. किसी तारीफ के मोहताज नहीं है. His efforts and his commitment and dedication towards his work is commendable, appreciated globally. He is also the recipient of the Cambridge International Award for the most dedicated teacher in the world in 2019. He is also an experienced and a qualified chartered accountant, a master's in HR, and also mentioned in the books of the change makers of the 33 most influential Pakistanis. So, Mr. Saya, how are you? Assalamu alaikum. Thank you, Afan, for a lovely introduction. Alhamdulillah, I'm fine. How are you? I'm fine as well, Mr. Saya. You know, I gave you this a great introduction. मैंने आज तक किसी को इतना लंबा introduction नहीं दिया और मुझे लगता है ये भी आपकी एक कम है. Thank you so much. I'm honored and it's a privilege. Thank you so much. So, Mr. Saya, आपने 20 साल से आप पढ़ा रहे, तो मुझे बताया कि आपने स्टार्ट कब किया है? Afan, I started teaching when I was in grade 9. Okay. Almost 13 years का था मैं when I started teaching, and at that point in time the intention behind teaching was not something कि मैं कुछ बहुत बड़ा difference create करूँगा या मैं ना ये कोई सोच थी ना ये intention थी कि मुझे कोई award मिलेगा. At that point in time the only thing that was in my mind was to finance my own studies and to have enough resources to fulfill things that I wanted to do. That was the only intention. But as I started teaching, I realized that teaching is not a job, it's a responsibility. It is something that cannot be done half-heartedly. It is something that we have to be passionate about. And only when we are passionate about teaching, it turns out into an amazing career, it turns out to be an amazing job to do, because you are touching lives when you are teaching. When you are teaching, you are making sure that the future of this country is taught the way forward. And I started realizing that slowly and gradually once I was teaching a few kids, and I realized that I just don't want to teach and go. I just don't want to do the work that I am supposed to do. I actually want to make change agents in this country. I want this country to prosper, and I alone cannot do that. For that, I need people, like-minded people, who are on the same page and who love the country the same way that I do, who are as patriotic as I am, and to create that mindset. मुझे ऐसा लगा कि टीचिंग सबसे बेस्ट चीज़ है जहाँ पे मैं लाइफ्स को टच कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं चेंज मेकर्स बना सकता हूँ, जहाँ पे मैं चेंज एजेंट्स क्रिएट कर सकता हूँ, और जो इस मुल्क के लिए काम कर सकेंगे और जो शायद मुझसे इंस्पायर होके मुझे अपना रोल मॉडल कंसिडर करके अपने माइंडसेट को ऐसे चेंज करेंगे दैट दे विल बी द फ्यूचर एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री. काश हर टीचर इस तरह सोचे. मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि जितना आपने सोचा है टीचिंग में, आई होप कोई भी बंदा अपने करियर के बारे में इतना सोचे और समझे. बड़े अप्रिशिएटेड है आपने. मगर ये मुझे बताया, आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो यू नो वालदेन का आपका किस तरह उनका हिसाब था जब उन्होंने देखा कि यार बच्चा अकाउंटेंट बन, यार ऑडिटर बन, या कहीं एमएनसी में जॉब वॉब कर, यू नो टीचिंग, व्हाई द हेल वुड यू डू दैट. और जिस वक्त आपने शुरू किया था, कितना ऐसा लुक्ड अपॉन नहीं था टीचिंग. अफान बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, बहुत अरसे तक, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, तो उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था. अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं कंटिन्यू करता गया पढ़ाना. जब मैंने स्कूल्स पढ़ाने के लिए ज्वाइन कर लिया ना, तब भी पढ़ाई चल रही थी साथ साथ. तो कोई मेरे वालिदैन से पूछता था आपका बेटा क्या करता है, तो ये नहीं बताते थे शुरू में कि वो पढ़ाता है, वो बोलते थे पढ़ रहा है. अच्छा. तो you are right in that perspective कि teaching at that point in time was not something that was looked up to. It was looked down upon at, because समझा ये जाता था जिसको कुछ नहीं आता वो टीचर बन जाता है. क्योंकि दो कैटेगरीज ऑफ टीचर होते हैं. एक वो टीचर होते हैं जो शौक से टीचर बनते हैं, दे आर टीचर्स बाय चॉइस. एक वो टीचर होते हैं जो चांस से टीचर्स बनते हैं,
क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं होता। मेरे केस में आई थिंक आई एम टीचर बाय चॉइस बिकॉज after having the degree and education that I have, I could easily pursue a job in any multinational or at least a good local firm. But I thought that I'm not made for that, and I realized that मुझे teaching करनी है. And eventually, the mindset started changing. Eventually, people started acknowledging कि yes, teaching can be a career pathway. अभी भी आप क्लास में बच्चों से पूछें क्या बनना चाहते हो बड़े होके, आपको मिलेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ, टीचर बनना चाहता हूँ. अब तक ऐसा है कि क्लास में हार्डली कोई हाथ उठाएगा और बोलेगा मैं टीचर बनना चाहता हूँ. इट इज़ वन प्रोफेशन दैट गिव्स बर्थ टू ऑल अदर प्रोफेशंस. एग्जैक्टली. हर प्रोफेशन, आप कुछ प्रोफेशनल बनेंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आप कोई आपने MBA कर लिया, आपने ACF कर लिया, आपको पढ़ाया किसने? किसी टीचर ने पढ़ाया. आप डॉक्टर बन गए, आपको पढ़ाया किसने? किसी डॉक्टर हु वाज अ टीचर, उसने पढ़ाया. तो कहीं ना कहीं टीचिंग इज वन प्रोफेशन दैट इज गिविंग बर्थ टू ऑल अदर प्रोफेशंस, एंड we do not realize that. We need to inculcate this into the mindsets of youth, that if you want to do something noble, if you want to do something good, and if you actually want to have a career pathway that gives a horizon for the youth, then you need to become teachers. तो यही आपकी फिलॉसफी है? आई थिंक मेरी फिलॉसफी यही है कि अगर आपको इस मुल्क में बेहतरी लेकर आनी है, आपको एक फॉलोअर्स की चेन बनानी है, और आप सबसे अच्छे फॉलोअर्स की चेन उस वक्त बना सकते हैं जब आप रोल मॉडल हैं. हर बंदा रोल मॉडल नहीं होता. रोल मॉडल वो होता है जो इंस्पिरेशन हो यूथ के लिए, और यूथ का सबसे ज़्यादा कांटेक्ट अपने टीचर्स के साथ होता है. तो अगर एक टीचर, एक एजुकेशनिस्ट रोल मॉडल है, चेंज एजेंट है, वो एक चेन बना रहा है ऐसे लोगों की जो उसके साथ एक कारवां बना के आगे बढ़ेंगे, तो आई थिंक इस मुल्क में बहुत बेहतरी आ जाएगी. हम लोग का अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है, वी एज पाकिस्तानीज लाइक टू प्ले द ब्लेम गेम. ये इसका कसूर है, ये उसका कसूर है. What we don't realize is what is our role in that dilemma. हमारा अपना रोल क्या है, हम अपने मुल्क को कैसे बेहतर बनाएंगे, एंड अगर हम अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो हमने उसके लिए क्या वर्किंग करी है, क्या होमवर्क किया है, क्या बेहतर बनाने के लिए कुछ एफर्ट्स करी हैं, कुछ स्टेप्स लिए हैं, और अगर लिए हैं तो उसको लोगों तक कैसे पहुँचाएंगे. तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये होती है कि हम ब्लेम गेम तो खेल रहे होते हैं, हम पॉइंट फिंगर्स तो कर रहे होते हैं कि इसकी गलती, उसकी गलती है. वी फॉरगेट कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी उस पूरे सिनेरियो में. और जब तक हमें ये रियलाइज नहीं होता कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, हम लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि इट्स अस हु नीड्स टू चेंज. एंड वंस वी चेंज एंड वी चेंज सो मच दैट वी इन्फ्लुएंस पीपल, देन वी आर ऑन द राइट ट्रैक. तो ये बताए कि आपने अपनी इंस्पिरेशन बताया कि आप इंस्पायर करना चाहते हैं, तो अभी तक आप किसी स्टूडेंट से इंस्पायर हो जितने स्टूडेंट्स आपने पढ़ाए? बहुत बार ऐसा हुआ है. देखिए, हम टीचर्स का एक और प्रॉब्लम होता है, हम टीचर्स को एट टाइम्स ऐसा लगता है हमें सब आता है. ऐसा नहीं है. बीइंग अ टीचर, मैं ये बात बहुत ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमें सब आता है. इट्स अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस. जापानीज एक टर्म यूज़ करते हैं, काइजन. ठीक है, हम बहुत पढ़ते हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते. काइजन इज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. सो एवरी टाइम आई एम इन क्लास, आई कैन नॉट से कि मुझे हर चीज़ आती है इस चीज़ के बारे में. यस, मुझे शायद बहुत कुछ आता होगा, लेकिन मुझे सब कुछ नहीं आता. एट टाइम्स मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मैंने एक चीज़ पढ़ाई, मुझे लगा मैंने ज़बरदस्त पढ़ा दी, और स्टूडेंट ने मुझे उस चीज़ का एक बेहतर सोल्यूशन बता दिया. ठीक है, सिंस आई टीच मैथ एंड अकाउंटिंग, देयर आर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अवेलेबल, एंड एट टाइम्स the student tells us amazing things and we are awestruck कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये मेरे जहन में तो नहीं आया. I did not thought that process, and this student has come up with an amazing idea, amazing step, amazing working, a time saver technique. So we have two options. Option one, we tell them मैं जो बोल रहा हूँ वही करो भाई, मुझे आता है. अक्सर होता है. ठीक है. दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उस पर पॉन्डर करें एंड आप एक्नॉलेज करें, आप बोलें यार अमेजिंग जॉब, वेल डन, येस यू कैन डू दिस. अपना मेथड भी बताएं, यू कैन डू दिस. नाउ टेल द स्टूडेंट्स टू हैव दिस थिंग दैट whichever way you think is better, apply that method, that's not an issue. Until and unless
वर्किंग्स के मार्क्स हों, स्टेप्स के मार्क्स हों, और वो द स्टूडेंट हैज कम अप विद एन अमेजिंग आइडिया दैट डज नॉट रिक्वायर वर्किंग्स, बट यू नो दैट स्टूडेंट विल लूज मार्क, देन दैट्स एन इशू कि आप उसको बोलेंगे कि प्लीज इसमें इलैबोरेट करना जरूरी है, दिस स्टेप इज अमेजिंग, वंडरफुल, यू हैव डन द राइट जॉब, बट यू कांट डू दैट इन एन एग्जाम. अनफॉर्चुनेटली टीचर्स का एक और डिलेमा भी होता है. हम जो होते हैं ना, वो इट्स अ ग्रेड फॉर ग्रेड, इट्स अ रैट रेस. हमें स्टूडेंट्स को अच्छे ग्रेड्स दिलवाने हैं, ए स्टार्स, इट्स अ रेस फॉर ए स्टार्स, डिस्टिंक्शंस, हमें डिस्टिंक्शंस दिलवानी है, हमें ए स्टार्स दिलवाने हैं, हमें एस दिलवाने हैं. तो हम इस रेस में ये भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ करिकुलम खत्म करवाना हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है. हाँ, बीइंग अ टीचर हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा बहुत कुछ और है. कोर्स खत्म करवाना इज वन एस्पेक्ट, उनके ब्रेन को नर्चर करना इज अनदर बिग थिंग, कि वो उसका थॉट प्रोसेस बेहतर हो रहा है. Are we impacting their lives in such a manner that they are better students? Not only better students, they are better human beings. They are better individuals. They are better citizens of the society. They are better children. Are they improving on daily basis? हमारा सक्सेस का मयार गलत है. हमारे लिए सक्सेस क्या है? ए ग्रेड्स, ए स्टार्स आ गए सक्सेस है. यस, बिकॉज हर जगह ये रेस है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक सक्सेस है, बट इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ सक्सेस. सक्सेस क्या है? इफ यू आर बेटर देन व्हाट यू वर येस्टरडे, यू आर सक्सेसफुल. हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है. मेरा मानना ये, हमारा कंपटीशन किसी से नहीं, सिर्फ अपने आप से. इफ वी आर बेटर देन व्हाट वी वर येस्टरडे, वी आर सक्सेसफुल. चाहे हम एज अ स्टूडेंट हो, हम जो रिलीजन फॉलो करते हैं उसमें हम बेहतर हों. हम लेट्स से 5 घंटे पढ़ाई करते थे, अब से हमने 6 घंटे पढ़ाई करनी शुरू कर दी, इंप्रूवमेंट है, सक्सेस है. हम पहले वालिदैन की नाफरमानी करते थे, अब नहीं करते, बेहतर स्टूडेंट्स हैं. हम पहले लोगों का ख्याल नहीं करते थे, अब हम ख्याल करते हैं, हम बेहतर इंसान हैं. हम पहले नमाज का वक्त होता था इग्नोर करते थे, लेकिन अब नमाज पढ़ रहे हैं, बेहतर इंसान हैं. अगर हम लोग सौदा लेने जाते थे, उसमें कोई झूठ बोल देते थे, या हम कुछ अपने कारोबार में झूठ बोल देते थे, अब नहीं बोल रहे, सक्सेसफुल है. तो ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स होते हैं टुवर्ड सक्सेस. हम सक्सेस में क्या ढूंढ रहे होते हैं? ये अच्छी अंग्रेजी बोलता है, ये बहुत सक्सेसफुल है, इसके पास अच्छी गाड़ी है, ही इज वेरी सक्सेसफुल, ये बहुत ब्रांडेड क्लोथ्स पहनता है, ये बहुत सक्सेसफुल है. ये सक्सेस का मयार ही नहीं है. सक्सेस का मयार है सेल्फ सेटिस्फैक्शन. अगर मैं अपने बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ, मुझे मजा आ रहा है, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एंजॉयिंग दैट, मैं कॉन्टेंट हूँ अपनी चीज़ों के साथ, ठीक है, और मैं इंप्रूव कर रहा हूँ डेली बेसिस में, और मैं हर रोज अपना मुहासबा करता हूँ, एम आई बेटर देन व्हाट आई वाज येस्टरडे, व्हाटएवर एस्पेक्ट इट इज. तो वो सक्सेस है. हम सक्सेस गलत ढूंढ रहे होते हैं, और जब हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं और हम बोलते हैं कि यार ये बहुत सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट आई मेंशन, तो हम वो आइसबर्ग का टिप देख रहे होते हैं, जिसके पीछे जो स्ट्रगल, हार्डवर्क, मेहनत, सैक्रिफाइसेस है, वो तो नजर नहीं आ रहे होते ना. तो कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंट, हार्डवर्किंग करना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आहिस्ता 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 बिल्डअप करती हैं सक्सेस को. सक्सेस ओवरनाइट कुछ नहीं होता, ठीक है. मैं एक कोटेशन है जो बहुत बहुत रिपीट करता हूँ, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू बिकम. एग्जैक्टली, मैं यही कहता हूँ. आप जितना मेहनत कर लेना, आप कामयाब होते चले जाएंगे. कोई पैदाइशी लकी पैदा नहीं होता इस दुनिया में. दो चीजें जो मेरे ख्याल में लक को बदल देती हैं, हार्ड वर्क एंड दुआ. यू मेक दुआ, यू पुट इन एफर्ट्स, यू आर बाउंड टू बिकम सक्सेसफुल. Agreed, I completely agreed, because आपने जो दो बात की, एक ये, the harder you work, the luckier you get, and you know, I want to improve myself. तो that's something, two things that I agree with you and I completely use. बाकी सबसे भी agree करता हूँ मैं, मगर ये बाकी दो पे मेरी philosophy में भी included है. तो जिन्हें मैं रोज़ अपने आप को देखता हूँ कि आज मैं शो होस्ट कर रहा हूँ, तो कल से बेहतर किया है नहीं, आज ये गलतियाँ हुई है, कल ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, कल कोई नई गलतियाँ करेंगे, हम सीखेंगे उससे. बिल्कुल. एक तीसरी कोट है इसमें, टू मेक अ मिस्टेक इज नॉट अ सिन, नॉट टू लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक इज द ग्रेटेस्ट सिन. गलती करना गुनाह नहीं है, गलती से ना सीखना गुनाह है. मतलब हम गलती नहीं करेंगे तो हम तो मतलब अशरफुल मखलूकात से भी कोई अपर लेवल पे चले जाएंगे. हम गलती करेंगे और हमें उस गलती से सीखना है. एंड देखिए, ये बीइंग अ टीचर, ये हमें अपने स्टूडेंट्स में भी इनकलकेट करना है कि वंस अगेन मेरी जिम्मेदारी सिर्फ कोर्स खत्म करवाना नहीं है, तालीम के साथ उनकी तरबियत करना भी मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है. और वो तरबियत की जो सारी बातें हमने करी ना, ये तरबियती पहलू में आता है. बिल्कुल. लेकिन क्योंकि एक रैट रेस है, ग्रेड फॉर ग्रेड है, ए स्टार दिलवाना है, तो ये तरबियती अमल जितना कम होता है, वो उल्टा हिसाब है. तरबियती अमल ज्यादा होना चाहिए, पढ़ाई तो साथ साथ हो जाएगी. हम पढ़ाई करवा रहे होते हैं, तरबियती अमल एक कोने में होता है, कभी कभी मौका मिल जाता है उसको.
चलिए, काफ़ी सीरियस बातें कर ली है। मैं चाहता हूँ व्यूअर्स वाले बोर ना हो जाए, ये सीरियस बातें कर रहे हैं हम, काफ़ी डीप बातें। मगर चलिए कुछ लाइट हार्ट बातें कर लेते हैं हम, इन द सेंस कि बेसिकली सर साया और होमवर्क दो ऐसी चीज़ें जो साथ जोड़ के बोली जाती है। तो इसके बारे में मुझे आपसे पूछना है। और मैं कल रात का भी वाक़या आप सबको बताता हूँ कि कल रात को नॉर्मली हमारी टीम है जो इंट्रो और क्वेश्चंस प्रिपेयर करके देती है मुझे, और मैं बाज़ का सुबह उठ के मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ, सो दैट आई रिमेंबर देम बिफोर द शो। तो सर साया ने मुझे रात को मैसेज किया कि आपने इंट्रो बना लिया है। मैंने, अब मेरे जहन में था बना लिया होगा, यकीनन क्वेश्चंस मेरे पास है तो इंट्रो भी होगा। तो आपने बना लिया है, आपने अपना या मैं भेजूं या आपने अपना होमवर्क कर लिया है? अब मैंने होमवर्क का कीवर्ड सुना, मैं भी परेशान हो गया। मैंने बोला सर साया ने कहीं नहीं छोड़ा यार होमवर्क को। मतलब इंटरव्यू से लेकर क्लासरूम तक होमवर्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन हिज लाइफ। तो मुझे बताया कि होमवर्क का क्या कॉन्सेप्ट है, आप कैसे समझते हैं कि होमवर्क देकर क्या हम अचीव करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा होमवर्क देने के साथ? देखें, मसला ये कि जो दो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ ना, मैथ और अकाउंटिंग, दे रिक्वायर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, हार्ड वर्क के बगैर कुछ नहीं होता। द स्टूडेंट्स दैट आई टीच आर नॉर्मली फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स। किसी की मैथ अकाउंटिंग बहुत अच्छी होती है, किसी की बिल्कुल वीक होती है, किसी को कुछ नहीं आता, किसी को बहुत कुछ आता है। माई की टू इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स इज मेक देम वर्क हार्ड, सो मच सो दैट अगर वो नहीं भी अच्छे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर जाएं। एंड येस, आई डू गिव लॉट्स ऑफ होमवर्क, and the main purpose behind that homework is to make sure that the student is familiar with all types of questions that can be tested in exams. And not only this, this is one philosophy behind giving homework. The second philosophy is the life after classroom is not an easy life. Exactly. जब वो कॉर्पोरेट में जाएंगे या वो अपना बिजनेस करेंगे तो उन्होंने होमवर्क करना है। उसका नाम होमवर्क नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपना होमवर्क करना है। बिफोर स्टार्टिंग a business, if they are starting, they need to have the market analysis done. They need to know which product they are launching, who are the competitors, who will what will be the substitute of the product. क्या ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ उनको प्रॉफिट कमा के देगा या माशरे को फायदा भी देगा? ठीक है, तो सोच डेवलप करनी है हमें। बीइंग टीचर्स, हम सिर्फ बच्चे को जो उस वक्त जो 1-1.5 घंटे की क्लास होती है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, हम उसको सोचने का तरीका सिखा रहे हैं, उसकी जहन साजी कर रहे हैं, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ उनको कामयाबियों तक ले जाएगी और क्या चीज़ नहीं ले जाएगी। और उसमें होमवर्क का बहुत बड़ा पार्ट है। जब बच्चा होमवर्क करता है ना, उसको सेल्फ डिसिप्लिन मिलता है, उसको पंचुअलिटी का अंदाज़ा होता है, उसको ऑर्डरलीनेस का अंदाज़ा होता है, उसको इस बात का ख्याल होता है कि स्ट्रगल क्या होती है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी तो मेरा एक टारगेट अचीव होगा। और ऐसा होगा जब वो कॉर्पोरेट्स में जाएंगे तो उनको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, एट टाइम्स बहुत शॉर्ट डेडलाइंस पे काम करना पड़ेगा। उस वक्त उनको याद आएगा कि मैंने बहुत शॉर्ट डेडलाइंस पे बहुत सारे होमवर्क किए थे, जब आई सर्वाइव थ्रू देम आई कैन सर्वाइव थ्रू दिस ऑल्सो। ये बहुत बड़ा रीजन है होमवर्क बहुत सारा देने का। जो उस वक्त रियलाइज नहीं होता बच्चों को, बच्चों को लग रहा होता है कि क्या मुसीबत है, इतना काम करना पड़ रहा है, हमारी जिंदगी में तो और बहुत कुछ है करने को। यस, बट दैट इज द वर्क लाइफ बैलेंस, कि आपको बहुत कुछ करना है जिंदगी में, बट यू नीड टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको करनी होगी, कौन सी ऐसी चीज़ है विच यू लर्न द हार्ड वे बाय मेकिंग योर ओन मिस्टेक्स, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप जिंदगी में जल्दी सीख जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में जब ग्रेजुएट कर जाते हैं तो वो कमेंट करते हैं कि उस वक्त आपने काम करवाया तो आज हमारी काम करने की आदत है, उस वक्त ये कॉन्सेप्ट हार्ड वे लर्न कर लिया तो आज जिंदगी में सुकून है। एंड दैट इज द अचीवमेंट फॉर टीचर। टीचर के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है टू सी देयर स्टूडेंट सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर वो अपने स्टूडेंट को कामयाब देखते हैं ना तो वो अपने आप को कामयाब तरीन शख्सियत महसूस करते हैं। माई सक्सेस इज माई स्टूडेंट सक्सेस, my legacy or my is not only my students, my legacy is the legacy that my students will create। क्या वो मैंने उनको इतनी तरबियत दे दी है कि जब वो आगे कुछ कर रहे हैं कि उसमें कोई इम्पैक्ट है, या सिर्फ वो मैंने किसी को कुछ पढ़ाया समझाया बताया सिखाया एंड वो खुद तो बहुत कामयाब हो गया लेकिन वो टाइट फिस्टेड कामयाब हुआ, उसने अपने अकम्पलिशमेंट्स आगे शेयर नहीं किए, उन्होंने उस चीज़ को आगे फैलाया नहीं, उनकी ज़ात से लोगों को फ़ायदा हुआ नहीं, तो आई थिंक आई हैव नॉट डन माई जॉब वेल।
बिकॉज मैंने उसको शायद वो तरबियत नहीं दी जो मुझे देनी चाहिए थी कि हमें टाइट वेस्टेड नहीं होना है, हमें लोगों की मदद करनी है. हमारी कामयाबी इट्स नॉट नेसेसरी टू विन द रेस, या हमारे जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी नहीं है. देयर कैन बी अ विन विन सिचुएशन. हम कुछ इस तरह जीतें कि हमारे साथ सब लोग जीतें. एक ऐसा गोल कॉन्ग्रेंट बिहेवियर हो जिसमें मेरी कामयाबी दूसरों की कामयाबियों से लिंक्ड हो. Exactly. और बीइंग अ टीचर ये मुझे सबसे ज्यादा नजर आता है. मेरा स्टूडेंट कामयाब है तो मैं कामयाब हूँ, मेरा स्टूडेंट सक्सेसफुल है तो मैं सक्सेसफुल हूँ, उसका अच्छा ग्रेड आया तो मतलब मैंने अच्छा काम कर लिया. तो मेरी तो डायरेक्ट लिंक्ड है जिंदगी मेरे स्टूडेंट्स की जिंदगी से. इफ दे आर डूइंग बेटर आई एम इम्प्रूविंग, इफ दे आर डूइंग वर्स आई एम एट फॉल्ट. सो हमें अपनी जिंदगी में गोल कॉन्ग्रेंट बिहेवियर बनाना है, चाहे हम कॉर्पोरेट्स में हो, एमएनसीज में हो, अपना काम कर रहे हो. हमें वी नीड टू कम आउट दैट सेल्फिश थिंग. हमने जो हेलो इफेक्ट बनाया है ना हम खुद, उससे बाहर निकलना है. हमें दूसरों के बारे में सोचना है. हमें ये सोचना है कि जो हम ये काम कर रहे हैं उसमें हमारे अलावा दूसरों का क्या फायदा है. आर वी अ सोर्स ऑफ बेनिफिट फॉर पीपल अराउंड अस, और आर वी जस्ट द सोर्स ऑफ बेनिफिट फॉर अस. इफ वी आर जस्ट द सोर्स ऑफ बेनिफिट फॉर अस, हमने कोई बहुत नेक काम नहीं किया, या हमने कोई बहुत कामयाब जिंदगी नहीं गुजारी. हमारी कामयाबी ये है कि हमारी वजह से लोगों की जिंदगियां संवर जाएं. हमारी कामयाबी ये है कि हमारी गैर मौजूदगी में लोग हमारे बारे में जो बात करें वो अच्छी हो, पॉजिटिव कॉनोटेशन में हो. Exactly. हमारी कामयाबी ये है कि जब हम ना हो तो हमारी कमी महसूस हो. बिल्कुल. हमारी कामयाबी ये है कि हमारा नाम लिया जाए तो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए कि हमने उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा करा था जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में कुछ बहुत बेहतरीन चेंज आ गया. ये कामयाबी है. एग्जैक्टली. तो मिसेस आया, मुझे ये भी पूछना है कि जैसे ये बहुत सारे अभी हम टीचिंग एज अ करियर डिस्कस कर रहे हैं कि टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और वो करियर को प्रोसीड करता है. हमने बात की कि आपके माँ बाप ने भी इस तरह फेस किया कि किस तरह टीचर इज़ नॉट लुक्ड अप प्रोफेशन. बट अब इस तरह थोड़ी चेंज आ गया है मार्केट में एंड इंडस्ट्री में, काफ़ी चेंज आ गया है. काफ़ी नए टीचर्स एवरी ईयर न्यू टीचर्स कम इनटू स्कूल्स एंड कॉलेजेस. तो एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल पैसा बहुत आ गया है टीचिंग में. अगर हम इस सेंस में कहें, ट्यूशन सेंटर्स, क्रैश कोर्सेज, बूट कैम्प्स, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वर्कशॉप्स और डिफरेंट चीज़ें हम करते हैं और टीचिंग हो रही है डिफरेंट तरीके से, बच्चे जा भी रहे. तो मगर इसे बताए कि हर किसी की एक आपने कहा रैट रेस लगी हुई है, तो सब इस रैट रेस में लगे हुए. तो आज जो हमारा ग्रेजुएट है, किसी भी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हो, आईपीए का हो, सीबीएम का हो या किसी अदर यूनिवर्सिटी का भी हो, उस टीचिंग एज अ करियर देखता है कि मुझे टीचिंग में जाना है, कि मैं टीचिंग करना चाहता हूँ. तो इसके अंदर आप मुझे इसके प्रोज बता दें और इसके कॉन्स बता दें. एक प्रो तो ये है कि आप लुक्रेटिव हो गया है कंपैरेटिवली पहले ज़माने में, ओ लेवल ख़ास तौर पे. कौन ये है कि ये फिर आप ही बताएं, मैं नहीं कहना चाहता. देखें, टीचिंग एज अ प्रोफेशन बहुत अच्छी चीज़ है. बहुत सारे प्रॉज हैं इसके. एक अंबिया की सुन्नत है, ठीक है, एवरी प्रॉफिट वाज अ टीचर. एग्जैक्टली. ठीक है, तो एक अच्छा काम हो गया. दूसरा, मैं समझता हूँ जिंदगी में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है. तो आप बहुत अच्छी उस प्रोफेशन को अच्छे से बना सकते हैं, अपना करियर पाथवे चूज कर सकते हैं, चाहे वो टीचिंग हो या ना हो. दैट इज विलिंगनेस एंड एबिलिटी. अच्छा. अगर आपके अंदर विलिंगनेस है टू बिकम अ टीचर, यानी आप टीचर बाय चॉइस बनना चाह रहे हैं, बिल्कुल. अमेजिंग. दूसरी चीज चेक कर लें, डू यू हैव द एबिलिटी टू डू दैट. everyone cannot be a good teacher, it's a skill. That is, I personally feel, God gifted to some extent, polished by the teacher himself to other extent. Exactly. ठीक है, तो आप जितना आहिस्ते आहिस्ते पढ़ाते रहते हैं आप इम्प्रूव करते जाते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहली दफ़ा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया और आप 50वीं दफ़ा वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो दोनों बार आपने सेम पढ़ाया होगा. बिल्कुल. हर दफा लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं. पहला प्रॉब्लम ये है कि जब आप पहली दफ़ा कोई चीज़ पढ़ाते हैं ना, तो आप बहुत पैशन से पढ़ाते हैं, आप उस चीज़ में एंटर होना चाह रहे होते हैं, उस फील्ड में एंटर होना चाह रहे होते हैं, आप अपना रिसर्च, अपना होमवर्क करके आते हैं कि मैंने ये चीज़ पढ़ानी, तो ऐसे 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 पढ़ानी. जब आप 50वीं दफ़ा पढ़ा रहे होते हैं ना, या तो बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, मुझे आता है, एक प्रॉब्लम. ये जब आप 50वीं दफ़ा पढ़ा रहे होते हैं, आप बोर हो चुके होते हैं, तो आप बोलते हैं बस काम कर दो. मेरा मानना ये है कि जब आप टीचिंग को एज अ प्रोफेशन चूज करें तो बिल्कुल करें, इट्स अ गुड थिंग. बट एवरी डे इन द क्लास शुड बी लाइक द फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ इन द क्लास एंड द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ इन द क्लास.
क्योंकि आप जब कोई काम जिंदगी में पहली बार करते हैं तो उसमें आप एफर्ट्स बहुत लगाते हैं, मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, यू वांट टू इम्प्रेस द ऑडियंस। एग्जैक्टली। जो काम आप लास्ट टाइम कर रहे होते हैं, आपको पता है ये आखिरी दफा है, तो इट हैज परफेक्शन इन इट, यू वांट टू गिव योर बेस्ट शॉट फॉर द लास्ट टाइम। सो एवरी टाइम यू एंटर द क्लासरूम विद दिस माइंडसेट दैट ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी क्लास है, आप अमेजिंग उसके रिपल इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे। आप ऐसा कुछ करेंगे जिससे वाकई बच्चा जो है ना उसके लिए वाव एक्सपीरियंस क्रिएट होगा। तो अगर किसी को टीचर बनना है आफ्टर डूइंग देयर बैचलर्स मास्टर्स, yes, it's an amazing field, it requires lots of good talented teachers, but it requires honest teachers जिनका मेन मकसद इस प्रोफेशन में आके पैसे कमाना ना हो। सिर्फ पैसे कमाना ना, ठीक ये है? सिर्फ पैसे। नहीं, सिर्फ पैसे कमाना ना हो, हम्म उनका मकसद हो कि टीचिंग करने से पहले उसके बारे में उन्होंने सोचा हो, उन्होंने जाना हुआ हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि टीचर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर खुदा ना ख्वास्ता एक बंदा टीचर बना और इस माइंडसेट के साथ टीचर बना कि मैंने तो सिर्फ पैसे कमाने, और उसने अपने एक्शन से अपनी क्लास में ये प्रूफ करता गया कि मैंने पैसे कमा रहा हूँ मैं इससे, एंड इट्स अ वेरी गुड फील्ड बिकॉज इट्स मिंटिंग मनी फॉर देम, देन बच्चे पे भी ये इन्फ्लुएंस पड़ेगा। जो क्लास में बच्चा होगा वो भी टीचर बनना चाहेगा सिर्फ इसलिए कि इस काम में पैसे हैं। बिल्कुल। ऑन दी अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, होना क्या चाहिए कि टीचर इन्फ्लुएंस करे एवरीथिंग अदर देन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर्स हु आर नॉट मेकिंग गुड मनी, बिल्कुल। बट दे आर अमेजिंग टीचर्स। ओके, बिल्कुल। उनका काम, उनका अंदाज़े बयां, उनका पढ़ाने का तरीका, उनकी मेस्मराइजिंग इफेक्ट्स इन क्लास, you feel like sitting in their class for hours without moving because they are impacting you. And जिंदगी में गिव एंड टेक रिलेशनशिप जब बहुत हो जाता है ना कि अगर बंदा ये सोचना शुरू कर दे मुझे इस काम के बदले इतने पैसे मिल रहे हैं, तो आपके काम की एफिशिएंसी मिनिमाइज हो जाती है या लिमिट हो जाती है या वो पैसों की हद तक महदूद हो जाती है कि क्योंकि मुझे इस काम के इतने पैसे मिल रहे हैं इसलिए मैं ये काम इस लेवल तक करूं, और यहाँ पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो ये काम उस लेवल तक करूं। अगर आप पैसों को साइड पर छोड़ दें और ये आपकी फिलॉसफी बन जाए कि जो मेरा रिस्क है वो मुझे मिलके रहेगा, तो आप ये सोचें कि भाई इट्स इम्पोर्टेंट, ओके, बट इट्स नॉट प्राइमरी थिंग। प्राइमरी थिंग इज माई पैशन। मुझे मज़ा आ रहा है, मैं करता रहूँगा चाहे मुझे पैसे मिले या ना मिले। एंड जब आपको कोई काम करने में मज़ा आता है और उसमें आपको पैसे भी मिल जाए तो आप तो काम ही नहीं कर रहे, आप तो मज़े कर रहे हैं। और ये काम होता है, ये काम करने में मज़ा भी आता है, आपका दिल भी लगता है, आप रोज़ एनर्जेटिक भी होते हैं, आपका रोज़ दिल भी चाह रहा होता है आज मुझे डिफरेंस क्रिएट करना है, आज मुझे इन्फ्लुएंस करना है, आज मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरी क्लास में हर बच्चा बोले वाह मज़ा आ गया। मुझे तो साहब मुझे आपसे ये पूछना है कि जैसे आपने कहा कि हर बंदा टीचर नहीं बन सकता, तो लिहाजा जैसे कोई कुछ ना बने तो टीचर बन जाता है इन द सेंस, तो आपको नहीं लगता कोई बैरियर्स होने चाहिए इन द सेंस कि बैलेंस इन चेक्स हो, कोई आपने कहा आप BEd हो या MEd हो या आप तो PhD कर रहे हैं एजुकेशन में, तो आपको नहीं लगता कि ये बंदे को ये करना चाहिए बिफोर कमिंग इनटू टीचिंग इन द सेंस कि थोड़ा पता हो उसे कि इंडस्ट्री किस तरह चलते हैं पर हाथे कैसे। हर PhD वाला, मैं बता दूं IBA वालों के लिए ख़ास तौर पे जो मुझसे कहते हैं हर PhD वाला अच्छा टीचर नहीं होता। आज सुबह ही मुझे कॉल आई एक टीचर के बारे में, मुझे ये कॉल आई कि ये हो गया है वो हो गया है, आप ये भी कवर करें, लिहाजा मैं वो बात नहीं करूँगा। मगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हर PhD का मतलब ये नहीं है कि वो एक टीचर भी बन सकता है। यूनिवर्सिटी को मैंडेट नहीं करना चाहिए कि यार आप PhD करें तो आप यहाँ टीचर बन सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया ना कि टीचिंग इज अ स्किल, इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग। एवरी गुड स्टूडेंट कैन नॉट बी अ गुड टीचर, एवरी PhD कैन नॉट बी अ गुड टीचर। अच्छा टीचर कौन है? विलिंगनेस एंड एबिलिटी। जो टीचर बनने के लिए विलिंग भी है और उसके अंदर एबिलिटी भी है। एबिलिटी उसके अंदर का वो स्किल सेट जिसमें उसको लगता है कि मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, मैं बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सक रहा हूँ। कभी कभी बहुत ख़राब स्टूडेंट्स बहुत आउटस्टैंडिंग टीचर्स होते हैं। बिल्कुल, उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने अपनी कमज़ोरियाँ ओवरकम करी होती हैं और उनको पता होता है कि जो बच्चा है ना उनको ये कमज़ोरियों का सामना करना पड़ता है। एंड इवेंचुअली दे टर्न आउट टू बी फिनोमिनल टीचर्स, and at times there are amazing PhDs
ठीक है। राइट, तो मुझसे साया हम बात ये कर रहे हैं कि हर टीचर इज पीएचडी नेसेसरी फॉर बीइंग अ टीचर? डू यू थिंक कि पीएचडी करने वाला ही टीच कर सकता है, या ये बैचलर इन एजुकेशन या मास्टर इन एजुकेशन वाला ही टीचिंग करियर में जाए? देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट हर पीएचडी होल्डर ही टीचर बन सकता है, हर पीएचडी होल्डर बहुत अच्छा टीचर हो सकता है। जिस तरह हर शख्स जिसके हाथ में डीएसएलआर होता है वो फोटोग्राफर नहीं हो सकता, इस तरह हर पीएचडी होल्डर बहुत अच्छा टीचर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने एजुकेशन की फील्ड में आना है तो उसकी प्रॉपर स्किल्स हों तो अच्छा होता है। अगर आपने बीएड, एमएड, पीएचडी इन एजुकेशन किया हुआ है तो आप रिलेटिवली थियोरेटिकली अच्छा पढ़ा सकेंगे, क्योंकि आपको टीचिंग फिलॉसफी आती होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया होगा तभी आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एबिलिटीज से, अपने एक्सपोजर से सीखा हुआ है बहुत कुछ पढ़ाना। मेजॉरिटी टीचर्स आउट देयर, मेजॉरिटी टीचर्स आर नॉट पीएचडीज। मेजॉरिटी टीचर्स डू नॉट हैव एन एजुकेशन इन एजुकेशन, ठीक है। मेजॉरिटी टीचर्स हैव नॉट अटेंडेड वर्कशॉप्स ऑफ टीचिंग और लर्निंग हाउ टू टीच। मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स आर दोज टीचर्स जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपोजर से बाय लक पढ़ाना शुरू कर दिया, और वो आहिस्ता 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 अपने आप को ग्रूम करता गया, एंड इवेंचुअली दे चूज बिटवीन द फैक्ट वेदर दे वांट टू बिकम गुड टीचर्स, एक्सेप्शनल टीचर्स, हार्ड वर्किंग टीचर्स, और दे वांट टू बी एज दे आर। वही फर्क आ जाता है टीचर्स बाय चांस या टीचर्स बाय चॉइस वाला। तो टीचर्स बाय चॉइस होंगे तो वो डेफिनेटली अपने आप को ग्रूम करते रहेंगे टिल दे रियलाइज के दे आर इन अ पोजीशन कि वो बहुत बेहतर हैं। लेकिन अगर किसी को एजुकेशन की फील्ड में आना है, हम क्योंकि टीचिंग एज अ करियर की बात कर रहे हैं, तो अगर इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑप्ट टीचिंग एज अ करियर, माय एडवाइस वुड बी, अगर उसने अपने ओ लेवल्स, ए लेवल्स या मैट्रिक, इंटर के ज़माने में ये फैसला कर लिया मुझे टीचर बनना है, तो अपने ओ लेवल्स, ए लेवल्स के बाद, अपने इंटर के बाद वो फिर बीएड करे, वो एजुकेशन, बैचलर्स इन एजुकेशन करे, मास्टर्स इन एजुकेशन करे, ताकि वो उसी फील्ड में आगे अपनी चॉइसेस को परसू कर रहा हो जिसमें उसको जाना है। अगर उसने सोच लिया है कि मैं टीचर बनना चाह रहा हूँ और बनूंगा एट मैट्रिक, इंटर लेवल और ओ लेवल्स, ए लेवल्स के वक्त, then I think it will be not a very wise decision कि वो किसी और फील्ड में जाए और फिर रीराउट करके टीचर बन रहा हो, until and unless वो जिस फील्ड में जा रहा है वो ही उसको पढ़ानी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मास्टर्स इन मैथ कर रहा है और उसको मैथ पढ़ानी है तो समझ में आती है वो, या अगर मास्टर्स इन केमिकल कर रहा है और उसको केमिस्ट्री पढ़ानी है, या कोई और ऐसी फील्ड है, मास्टर्स इन फिजिक्स कर रहा है उसको फिजिक्स पढ़ानी है, तो समझ में आता है। लेकिन अगर वो एमबीए कर रहा है और उसको पढ़ानी मैथ है और या उसको टीचिंग में आना है, तो आई थिंक थोड़ा सा रूट सही नहीं है। तो पहले से डिसाइड कर ले कि उसकी एबिलिटी क्या है और उसकी विलिंगनेस क्या है, एंड उसके बाद उसका इंटरसेक्शन, विलिंगनेस एंड एबिलिटी का इंटरसेक्शन इज द की पॉइंट वेयर हिज करियर विल बी एट बेस्ट। तो अगर टीचिंग में आना है तो उसके अंदर एबिलिटी भी है, उसकी विलिंगनेस भी है, बेस्ट गो फॉर इट। राइट, तो दैट इज़ वन ऑफ आवर एडवाइसेस फॉर ऑल दोज ग्रेजुएट्स हु आर ग्रेजुएटिंग राइट नाउ, कि अगर आप टीचिंग एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं तो ये सारी टिप्स अगर आप में है या आप इंटरेस्टेड है, तो मिस्टर साया की जो टिप्स है आप उन पर काम करें, अपने आप को एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाए, जिससे आप अपने आप को डिस्कवर करें और जाने क्या मैं ये करना चाहता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, और क्या मैं ये करना चाहता हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये सब आपको आज डिसाइड करना है कि अगर आप इसे टीचिंग एज अ करियर में परस्यू करना चाहते हैं तो क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए। तो मिसेस आया, हम कुछ रैपिड फायर हमने प्रिपेयर कर रहे हैं सीज़न के लिए, तो मैं आपसे पूछता हूँ, एक वर्ड में आप मुझे जवाब दे दें। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट इन दिस रिगार्ड। टीचिंग इंडस्ट्री। इट्स अ सी, समंदर है पूरा। चलिए, ट्यूशन सेंटर्स। Tuition culture is not something that I would promote. I don't officially, I do have tuition centers, but I don't like tuition culture. I think eventually इसको खत्म हो जाना चाहिए। टीचर्स बहुत ईमानदारी से अगर स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दें, ट्यूशन सेंटर्स की नीड नहीं है। चलिए, ग्रेड्स। Important, but not the most important thing in life. चलिए, सेल्फ लर्निंग या सेंटर पे लर्निंग? Self learning. ठीक है, अभी दिस एंड दैट है, मुझे दो में से दो चॉइसेस है, गुड ग्रेड्स या गुड कैरेक्टर? Good character. ठीक है, जॉब और बिजनेस? Business. ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग और फिजिकल टीचिंग? On campus, face to face teaching. Anytime, hands down. मतलब जो फीलिंग क्लास में खड़े होकर पढ़ाने की है वो ऑनलाइन नहीं है। मैं क्लास में खड़े होकर जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ वो मैं ऑनलाइन क्रिएट नहीं कर सकता। मैं बॉडी लैंग्वेज देख के बता सकता हूँ कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ऑनलाइन स्क्रीन देख के नहीं बता सकता। चले, रट्टा या कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग? कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग।
मिस्टर साहब, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, जो हमारा शायद मुझे एक सवाल है बेसिकली जो हमारे अपकमिंग टीचर्स के लिए, कि क्या उनको मैसेज एडवाइस आप देंगे कि जो अपकमिंग टीचर्स आने वाले हैं. अपकमिंग टीचर्स के लिए एडवाइस ये है कि इफ़ दे आर एंटरिंग इनटू टीचिंग एज अ करियर, देन दे शुड डू इट ऑनेस्टली, पैशनेटली, डेडिकेटेडली. उनको चाहिए कि बहुत ईमानदारी से काम करें और इसको जॉब समझ के ना करें. इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब. बीइंग अ टीचर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल स्टार्ट व्हेन यू मीट द स्टूडेंट and will never end. It's a job that does not end when the class ends. It is not a job that will end once the student has graduated. कोई स्टूडेंट आपका स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट फॉर लाइफ है. उसको आपकी ज़रूरत है, चाहे वो क्लास हो, क्लास के अलावा उसको कोई एनी एडवाइस चाहिए हो. यू शुड बी देयर फॉर योर स्टूडेंट ऑलवेज, एंड यू शुड नॉट ओनली फोकस ऑन फिनिशिंग द सिलेबस और करिकुलम. तालीम के साथ तरबियत देना भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है. सो अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो आप टीचर से ज़्यादा ये सोच के टीचिंग इंडस्ट्री में आएँ कि आप एक चेंज एजेंट हैं जिसका काम है इस यूथ को डायरेक्शन दिखाना, उनको एक अच्छा सा मकसद प्रोवाइड करना, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करना, उनकी मॉरल एथिकल वैल्यूज़ पे काम करना, उनको सही गलत की तमीज़ सिखाना और अपने एक्शन से इस बात को प्रूव करना कि जो आप बोल रहे हैं वो ही आप स्टूडेंट से एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं. तो you have to act like a role model and you have to be an inspiration for the youth. If you think you can do that, if you think that you can take this challenging responsibility, if you think you can give your best to make this country a better place to live in and to make the youth of this country realize that this country is a beautiful place to live in and help them achieve the success and help them realize what is right and wrong, be a teacher, become a teacher. There is a need for lots of good teachers. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. मैं बोलूँगा सारे अपकमिंग टीचर्स को कि आप लोग अच्छे से काम कर सकें और अच्छे से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें. चलो, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ अस हु stay tuned for our episode. I hope you enjoyed it. I certainly did. And Mr. Syed, thank you for being here. And I hope you all enjoyed it. And thank you and Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़.